Good morning, student. Accountancy, first volume, chapter 2. The name is Accounting for Partnership Firm Fundamental. Partnership is a one type of business. There is a three type of business. One is the sole proprietorship, we have already known. Second is partnership, and third is company. Company may be the private or public. The private company, in private company, the owner or the private owner is investing the money first to start the business, and in case of public limited company, the fund will be arranged from the public by issuing of shares, debenture, etc. Separate part. So today we will discuss only the partnership. Partnership, the word is the meaning that minimum 2% and there is a maximum. The Partnership Act 1932, it is provide nothing about the maximum number of partners to be joined in a partnership firm, but I have written here according to the Companies Act 2013 section 464 and rule 10 miscellaneous of 2014, the minimum 2 and the maximum is 50. This is defined in the companies, not in the partner. Partners is silent regarding the maximum number of partnership or partners in a partnership firm, right? So the section is Indian Partnership Act 1932. Clear? Section is 4. The features or characteristics of the partnership. The meaning क्या हुआ फिर? The meaning is a partnership is a firm or a business where minimum 2% are joined as a partners to do a single business on behalf of one or on behalf of all. Maximum, according to the Partnership Act 1932, nothing is mentioned, but according to the Companies Act 2013 section 464 and the rule 10 miscellaneous of Companies Act 2014, that it is maximum 50. Clear? Now the next steps is features or characteristics of partnership. There are 5 features I have written here. One is, first is 2 or more person features, or it may be the characters. Second is agreement. Third is existence of business. Fourth is lawful business. Business must be lawful. Illegal businesses never be accepted as a lawful. Fifth is profit sharing, and sixth is business can be called on by all or any of them acting for all. I will define. So first is starting from the first point, that is 2 or more person. That is the thing, 2 or more person. Companies defined, Companies Act 2013 defined under section 464, that is the minimum is 2, maximum is 50. But Partnership Act 1932, nothing is mentioned. That part is silent. First point. So characteristics is minimum 2. First, maximum is 50. Second is the agreement. The agreements can be the nature, creation and contract of partnership. किस नेचर में एग्रीमेंट इसीलिए यहाँ पे किया जाता है. We have to do the agreement in between the partner, because if there is only the one person, he can take the decision solely. But if there is a more than one, the idea, view
and their activities, their opinion is must be different and is never be similar. So in case of partnership, the word is the nature and the contract of partner is coming automatically. So when there is a two different opinion, two different view or two different mentality or work for a single option or work for a single view or work for a single target, there must be some agreement. Agreement never be a verbal, because verbal agreement we never proved in our future action. आज मैंने किसी से वर्बली एग्रीमेंट किया कि ठीक है आप ये काम करो, मैं वो काम करूँगा, आगे जाके इफ एनी डिस्प्यूट वी नेवर प्रूफ कि ये हमने एग्रीमेंट किया था. दिस इज द मेन प्रॉब्लम. सो इट मस्ट बी इन रिटन. क्लियर? रिटन इसलिए है इफ एनी प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन फ्यूचर वी कैन मूव टू द लीगल स्टेप, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द लीगल पर्सन्स ऑन द बिहाफ ऑफ रिटन एग्रीमेंट. तो नेचर इज द बिजनेस. किस टाइप का बिजनेस हम करेंगे वो हमारे यहाँ पे एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि हम गारमेंट इंडस्ट्री करेंगे, आयरन इंडस्ट्री करेंगे, कोल इंडस्ट्री करेंगे. व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस? इट शुड बी लॉफुल. सेकेंड इज द क्रिएशन. क्रिएशन मतलब उसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे उसमें फंडिंग आएगा, फंड वैल्यू क्या होगा, कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा. दिस आर द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन द context of creation and the contract of partnership. This is the main part of the nature. First point of agreement कि एक contract in between the partner. अगर more than 4, 5, 6, 7 partner है तो एक contract होना चाहिए सबके बीच में कि these are the agreement in between us कि हम ये काम देखेंगे, तुम ये काम देखोगे, तुम्हारे पार्ट ये है, your responsibilities goes to this, your responsibility, you will get the salary, you will get the commission, whatever it is, it should be written in the contract. तो ये contract ऐसे नहीं कि आज हमने contract किया कल बोलेंगे हम पार्टनरशिप छोड़ रहे जा रहे हैं. That is not. So there is a contractual manner कि हम इतने दिन के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल. इज बिटवीन विच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन इट शुड बी अनलॉफुल एंड वी कैन टेक द स्टेप्स अगेंस्ट दैट पार्टनर इटसेल्फ. राइट? सेकेंड इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस. एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, एनी ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन टू बी ट्रीटेड एज ए एग्जिस्टेंस ऑफ एनी बिजनेस. बट ध्यान रखोगे यहाँ पे associations for the religious, charitable, social purpose are not treated as a partnership as they are does not exist the business. हम लोग जो not for profit organizations हम लोग सीख के आया फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वॉल्यूम में, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल, स्कूल, ये जो है इसमें ओन इंटरेस्ट एक पोजीशन क्रिएट होता है. तो देयर इज नो ट्रेड. यहाँ पे कोई परचेज सेल नहीं होता है, ना कोई प्रोफेशन होता है, ना कोई ऑक्यूपेशन होता है. चैरिटेबल टास्क इज ओनली फॉर द रिलेशन और द सोसाइटी, सोसाइटी बेनिफिट के लिए हम लोग उसको, दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस. दैट इज वाई जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चैरिटेबल टास्क या मंदिर फंड या स्पोर्ट्स क्लब को हम लोग क्या नाम दिया था वहाँ पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. Not for profit organization is not a business. ध्यान रखना था. When there is a target to earn some profit is called the business. Trading, buy and sell is called the trading. When there is a trading and professions are the occupations are known as it is a business. So इस केस में हम लोग क्या करेंगे, the associations of religious, charitable or the social purpose are not treated as the business on this ground. Fine. Now the lawful business or business must be legally. अब lawful business हम किसको बोलेंगे? Business can be do of any way. तो वो business क्या हो सकता है? It must be lawful. मतलब जो under the law it is permissible you can do. आप एक business कर रहे हो किसी को मारने के लिए, that is not a business. That is against the law. So the law जिसको बोलेंगे हाँ this is correct of manufacturing, this is correct, not against the human being, not against the nations, not against the anyone. So it is called the lawful business. मैं ऐसे कुछ
प्रोडक्शन कर रहा हूँ जो मेरा ह्यूमन बींग के लिए, सोसाइटी के लिए, कल्चर के सब के लिए वो हैम्पर होगा, किसी को डिजीज फैलाएगा, कुछ भी कुछ करेगा, तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ। तो लॉफुल बिजनेस मस्ट बी देयर, ये ध्यान रखना सबसे बड़ा चीज है। तो लॉफुल बिजनेस मीन्स इट इज द लॉफुल इन द आइज ऑफ कोर्ट और लॉ, जो कोर्ट परमिशन दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे लॉफुल बिजनेस। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या बोला गया? एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और लॉसेस बट नॉट नेसेसरी टू बियर द लॉसेस बाय द ईच पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग में मतलब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमें 5 पार्टनर्स के थ्रू एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो भी प्रॉफिट होगा हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई बोलेगा मेरे को दे दो इक्वली, कोई बोलेगा मेरे को ज़्यादा, तो दैट शुड बी द कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट। वो सारी चीज एग्रीमेंट में लिखा रहता है। पार्टनरशिप डीड जिसको बोला जाता है, वी विल डिस्कस इन द लेटर ऑन कि पार्टनरशिप डीड क्या है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। तो दिस इज द मेन पार्ट कि एक एग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट जो हुआ उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट दैट इज सम ऑब्लिगेशन कि सम पार्टनर्स आर देयर, स्लीपिंग पार्टनर होता है, वर्किंग पार्टनर होता है, फंडिंग पार्टनर होता है, कोई फंड दे के बैठ जाता है, खाली वो पैसे दिया और स्लीप हो गया। मतलब स्लीप मतलब इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नॉट वर्किंग प्रॉपरली मीन नॉट वर्किंग इन द फील्ड और नॉट लुक आफ्टर द बिजनेस। खाली फंडिंग करके उनका बिजनेस है। वो बोला मैं आपको 1 करोड़ रुपये फंडिंग कर रहा हूँ, मेरे को साल में इतना परसेंट 30% मेरे को प्रॉफिट चाहिए, दैट्स इट। अब 30% प्रॉफिट नहीं हुआ तो 2 पार्टनर्स उसको गारंटी दे रहे हैं, दे पार्टनर्स विल बी कलेक्टेड दैट प्रॉफिट एंड टू पे ऑफ। तो देयर इज ए वेरियस और 3 or 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन द बिजनेस। सो जो आप कोई एक्टिव पार्टनर होता है, कोई नॉन एक्टिव पार्टनर होता है। सो दैट इज शुड बी कि आप सारे पार्टनर लॉस बियर नहीं करेगा। सो इट इज टू बी रिटन इन द एग्रीमेंट कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे बनाएंगे, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट इज द business can be called on all or by them and active for all. 1932 Partnership Act, all partners work as an agent and as an principal, क्योंकि each partner contribute their fund is called the capital। 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 2-2 लाख करके कंट्रीब्यूट कर, दैट इज द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। सो पार्टनर्स आर इज द प्रिंसिपल मैन एज वेल एज द एजेंट। एजेंट क्यों बोला गया? क्योंकि each partner should do some part of the job and responsible is given to some part of the job. So partner is not only a principal, he or she is also an agent doing for all. अब doing for all और for all इसकी मीनिंग क्या है? सपोज मैं एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ कि हम देख रहे हैं कि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, someone is looking to hamper our business। तो मैं देख के चुप थोड़ी बैठूंगा, हमें क्या करना है? हमें सारे पार्टनर्स को बुलाना है एंड टेक द मीटिंग एंड टेक द डिसीजन हाउ टू प्रोटेक्ट द कंपनी, राइट? तो दिस इज द मेन मीनिंग। यहाँ पे वही चीज बोला है, ऑल पार्टनर्स वर्क एज एन एजेंट और एज एन प्रिंसिपल बट ए म्यूचुअल रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स क्रिएट द पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसकी मीनिंग यही है कि अगर हमें पता है कि कोई हमें कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वी हैव टू टेक द प्रोटेक्शन। हम बोले ठीक है छोड़ो, हमारा तो कुछ नहीं होगा, उसकी होगा, नहीं, दैट शुड नॉट बी। सो वी ऑलवेज डू और ऑलवेज प्ले एज एन पार्टनर एज वेल एज हमने एक एजेंट का पार्ट भी हम उसको रिस्पॉन्सिबल के हिसाब से हम टेक ऑफ करेंगे, तभी जाके हम पार्टनरशिप बिजनेस को लॉन्ग पीरियड के लिए हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक यहाँ पे पॉइंट होगा, दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या बोला जाता है कि पार्टनर्स की जैसे एक प्रॉफिट पोर्शंस के हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी लायबिलिटीज को भी हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सेक्शन एक्ट ऑफ 2008 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर, जिसको हम लोग LLP के नाम से जानेंगे, जो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, उसको हम वहाँ पे देखेंगे कि लायबिलिटीज के पार्ट कितने होता है, एक मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म।
हमने यहाँ पे मीनिंग रीड किया एंड फीचर्स रीड किया। फीचर्स में हम लोग 6 फीचर्स को रीडिंग किया। वन इज द 2 और मोर, सेकेंड इज द एग्रीमेंट, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, फोर्थ इज लॉफुल बिजनेस और बिजनेस मस्ट बी लीगल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, and business can be called on by all or for the any of them, acting for all. These are the 6 features in the fundamental of partnership and the meaning of partnership. So this is the first basic concept of the fundamental and the partnership. इसको read out करो, सोचो, इसको read करो, समझो। Anything problem, इसको 2-3 बार वीडियो को चलाओगे तो you will very much. So thank you very much.